Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are discussing the concept of dipole moment. In the previous lecture we have just started with the dipole moment. So today we are going to discuss that in detail. So let's we start. Yesterday we have discussed about the different structures of cationic and anionic structures of homonuclear molecules. How do we create cations and how we subtract electrons from them, and then we have just seen few examples of that, and plus we have discussed about the bond energy concept and the relationship of bond energy with the bond length, with the with the polarity difference, what are the units of bond length, how do covalent radius affects the bond energy, and what are these concepts, fine, and how sigma and pi bonds can affect the bond length. Plus we have just started with the dipole moment, and that dipole moment, as you can see, I just explained it to you that for example we have two different atoms having a difference in the electronegativity, and if they are combined with each other, so if they are combining with each other, so there will be a difference of the electronegativity created, and it will due to this difference of electronegativity, one atom will get a positive charge. You can call it a partial positive charge, and one will get partial negative charge, and we just say this for the time being they have a poles on it, and they are positive and negative, and we just call them a dipole. This is known as dipole, fine. And then we just saw the formula of dipole moment, that it is equals to the it is represented with the mu sign, and it is a product of charge and distance, fine. And the SI unit of dipole moment is coulombs meter, and the common unit is dBi, and it is 1 dBi is equals to 3.336 exponential minus 30 coulombs meter. This is the relationship which is important. You may be asked in the MCQs, and what is the relationship between the coulombs meter and dBi, so you have to explain it, fine. On the next slide, that's the concept we have discussed yesterday, and today we are going to discuss that in detail. Plus we will also see few more different topics here, and these are totally theoretical concepts. Like the structures part is ended, and we are going to start with the theoretical part of that chapter, and they are छोटी definitions हैं आपके पास जिनको हम लोगों ने explain करना है. तो सबसे पहले so we have applications of dipole moments. How do we apply them? So first of all, these are the applications of dipole moment. How many applications of dipole moment we have? We are going to discuss them in detail. So we have total in detail जब हम discuss करेंगे तो first of all we have determination of polarity of molecule. We can just discuss that how what is the polarity of that particular molecule which is under consideration, and then we have in stereochemistry how dipole moment can affect, and then we have on a third part we have calculating the percentage ionic character in a bond. And if you remember yesterday I have explained it that although हमारे पास जो molecule होता है it is a covalent in nature, उसके अंदर covalent bond होता है, but because of the difference of electronegativity one atom gets negative charged and the second one gets positively charged, and वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर positive और negative charge का influence होता है कि वो ionic character ज़्यादा show कर रहे होते हैं. like होते वो कोवेलेंट हैं, बट उनके अंदर आयनिक कैरेक्टर की क्वालिटीज़ जो हैं वो आ जाती हैं. सो उसको हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास एक्चुअली जो यहाँ पर कह रहे हैं ना, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन अ बॉन्ड, एंड दिस इज़ द न्यूमेरिकल. छोटा सा है, आई विल एक्सप्लेन कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है. इसके अंदर हमारे पास वी हैव अ फिक्स्ड फार्मूला, न्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन न्यू आयनिक, दिस वैल्यू मस्ट समटाइम्स 4.42 दैट वैल्यू इट इज़ गिवन. ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ कि व्हाट इज़ दैट. एंड एज यू कैन सी HF कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ 43% आयनिक. इन योर बुक इट्स आई थिंक आपकी बुक में HCl की एग्जाम्पल गिवन है. सो दीज आर द थिंग्स विच वी विल डिस्कस इन
डिटेल फॉर द डायपोल मोमेंट एंड देन देयर इज़ अनदर टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स, वो डेफिनेटली मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी. सो लेट्स वी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल द डायपोल मोमेंट definition is important. Then you have a determination of polarity of a molecule, that what is it. Basically molecules which have a zero dipole moment are non-polar, whereas molecule with some dipole moments are polar. For example, if we just take the example of chlorine and chlorine, there the dipole moment effect, for example this chlorine, if it is charges same होंगे, सही है. सो ये क्या है, नॉन पोलर इन नेचर है. नॉन पोलर इन नेचर है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली द बोथ आर सेम है, सो कोई डायपोल मोमेंट इनका ओवरऑल नेट इफेक्ट ज़ीरो निकलेगा. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस फॉर द सेम मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड. इफ़ यू सी दिस कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम नॉट राइटिंग इट लाइक दैट, मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, दिस इज़ योर CO2. So this carbon dioxide have a electronegativity difference, as you can see it is shown कि कार्बन आपका 4th ग्रुप का मेंबर है, CO आपका 6th ग्रुप का मेंबर है, बट स्टिल देयर डायपोल मोमेंट इज़ ज़ीरो. वाई? बिकॉज ऑफ द लीनियर स्ट्रक्चर. इसका जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, वैसे बनाते हैं. मैं आपको बना के दिखाती हूँ थोड़ा साफ सा. ये ऐसा होता है, CO इधर आता है बॉन्ड और इधर आता है. नाउ सी, आपके पास जो कार्बन है वो बीच में है, द स्ट्रक्चर इज़ लीनियर. एक प्लेनर पे 180 डिग्री पे अरेंज होते हैं ये. तो जब 180 डिग्री पे अरेंज होते हैं तो जो नेट इफेक्ट इस कार्बन पे होता है, जो अट्रैक्शन इस तरफ होती है वही अट्रैक्शन इस तरफ होती है, तो ओवरऑल जो नेट इफेक्ट निकलता है वो ज़ीरो निकलता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये रीजनिंग क्वेश्चन है कि जो आपका SO2 है वो उसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का ज़ीरो होता है. SO2 का ज़ीरो क्यों नहीं होता? क्योंकि S के पास एक जो है वो लोन पेयर्स होते हैं. S का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ट्राइगोनल होता है, ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डिफरेंस है. तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल डिफरेंस, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो उसको जो एक शेप दे रहा होता है, वो AB3 टाइप हमने पीछे वेस्पर थ्योरी में पढ़ी थी. तो वो इसकी वजह से इसका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है, इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है. बट डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ज़ीरो, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी ज़ीरो, दैट्स वाई. तो ये जो यहाँ पर मैं आपको डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल बता रही हूँ, वी विल नॉट जस्ट डिस्कस द सेम मॉलिक्यूल्स. ऑब्वियसली वी कैन हैव अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, सो वी विल जस्ट एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ दैट. सो दिस इज़ नॉट ओनली क्राइटेरिया कि होमो हैं तो उसके अंदर सेम होगा. फाइन. देन वी हैव इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, लेट्स वी रीड इट. डायपोल मोमेंट इज ऑल्सो एसेंशियल इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन आइसोमर्स ऑफ सेम कंपाउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. कोई भी आपके पास कंपाउंड है, कोई भी चीज़ है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है C6H12O6, and we all know this is a glucose, but at the same time this is a fructose formula also. तो fructose और glucose का molecular formula same है. so इनके अंदर difference कहाँ होगा? structural difference, structure के अंदर difference होता है. तो if molecular formula is same and structure is different, so that is known as isomer. so dipole moment is also essential in differentiating between isomers of a same compound. For instance 1,2-chlorodiethane can exist in two isomeric form. And now see, I'm just jumping to the conclusion. Let's we see the values. If you see the new values of our dipole moment value, it is 1.9 dB and this value is 0. Why is this so? Although they both are 1,2-dichloroethane, as you can see the formula is 1,2-dichloroethane, 1,2-dichloroethane, but why difference क्यों आ रहा है एक जगह आपके पास? So see, यहाँ structure की बहुत importance होती है in case of dipole moment whenever we are discussing it. Look at here, यहाँ पर आपके इसको आप अपना एक मिनट इसके ये समझें. दिस इज़ योर एक बीच की लाइन है, ठीक है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव 2 क्लोरीन्स अटैच्ड, ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड. सो व्हाट विल हैपन कि ये जो क्लोरीन है दे आर मोर पावरफुल देन दिस हाइड्रोजन, सो दे विल अट्रैक्ट दिस कार्बन टुवर्ड itself. Who? This chlorine and this chlorine will attract this carbon toward itself. So यहाँ आपके पास negative effect ज़्यादा हो जाएगा और ये hydrogen obviously they are weak in nature. So definitely they are going to behave as a positive in nature. Positively power charge हो जाएंगे. So क्या यहाँ पर आपके पास कोई dipole moment क्रिएट होगा? सो द आंसर इज़ येस, होगा. तो जो वैल्यू आएगी आपके पास it would be 1.9 dB होगी. फाइन.
नाउ लुक एट दिस केस। इधर अगर आप प्लेन अपना ये समझते हो कि ये आपका सेंटर है, ठीक है, सेंटर के इस साइड पे क्या है, दिस इज़ HCl, इस साइड क्या है, रादर द केस कि आपका हाइड्रोजन किस तरफ अटैच है, Cl किस तरफ अटैच है, दोनों साइड H और Cl अटैच्ड हैं, तो दोनों तरफ जो पावर होगी वो इक्वल लग रही होगी, सो द ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या निकलेगा, इट वुड बी ज़ीरो। सो दैट्स द रीज़न कि आपके पास 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अच्छा, ये एक और बात बता दूं, अगर दोनों एक सेम साइड पे हों तो दिस इज़ नोन एज सिस एंड दिस वन इज़ नोन एज ट्रांस। यहाँ पर ट्रांस बन रहा है और यहाँ पर दोनों सेम साइड पर हैं तो दिस इज़ सिस। सो सिस जो है उसके अंदर कहते हैं कि वहाँ डिबाई की वैल्यू कुछ होगी और यहाँ नहीं होगी, तो दिस इज़ हाउ इसको स्टीरियो एक्चुअली स्पेस के अंदर अरेंजमेंट होती है इनकी आइसोमर्स की, तो उसको स्पेस में, ठीक है, तो वो स्पेस की बात है तो स्पेस में ही समझते हैं हम इसको। तो लेकिन एक्चुअली होपफुली कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि यहाँ सिस और ट्रांस का क्या समझाने की कोशिश की है कि स्पेस के अंदर इनकी अरेंजमेंट अगर एक साइड पे होती है तो वो सिस होगा, और एक साइड लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं, एक साइड हैवियर हैं, सो वहाँ पर कोई ना कोई आपके पास जो डाइपोल मोमेंट है वो क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर सिस और ट्रांस के केस में ये होता है। नाउ द थर्ड पार्ट इज calculate the percentage ionic character in bond, and what does it mean? Percentage ionic character means कि you have a covalent bond but it is acting as an ionic bond, I mean it is showing some kind of ionic character. Similarly इस तरह से है कि आप होते देसी हो बट आप क्या किसी के भी लोग नॉर्मली आपने एग्जांपल लोगों की देखी होगी कि अक्सर बाहर चले जाते हैं तो एक हफ़्ता ही बाहर रह के आते हैं, एक महीना ही सपोज़ कर लो बाहर रह के आते हैं, तो उनका एक्सेंट चेंज हुआ होता है। सो लाइक होते वो देसी हैं लेकिन एक्चुअली उन्होंने करेक्टर लिया होता है। तो सिमिलरली इट गोज़ विद दिस एग्जांपल ऑल्सो कि एक्चुअली इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, बट सपोज़ कीजिए कि ये चले गए हैं बाहर और इनके ऊपर आयनिक करेक्टर आ गया, आयनिक लाइक बाहर का आ गया थोड़े अरसे के लिए, ठीक है। सो कैलकुलेटिंग द परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ अ बॉन्ड, द परसेंटेज of ionic character in a bond can be estimated by the considering the topic of a dipole moment by using the following formula. You have this formula and you have to cram this, रट्टा मारना है आपने इसका, सिंपल सी बात है। ये आपका फार्मूला है न्यू आयनिक, ऊपर आपकी म्यू ऑब्जर्वेशन। डाइपोल मोमेंट एक्चुअली होता क्या है कि हमारी कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि हमारे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ये आएगी, कुछ एक्चुअल हमारी वैल्यूज़ आती हैं जिसको हम आयनिक की वैल्यू कहेंगे। ऑब्जर्वेशन ऊपर, जो एक्चुअल वैल्यूज़ होंगी वो नीचे, एंड मल्टीप्लाई विद 100। और इसका ये तरीका भी बता रही हूँ कि जो ऑब्जर्व वैल्यू होंगी वो कम होंगी, जो ऊपर वैल्यू होगी वो कम होगी। परसेंटेज आयनिक करेक्टर हमेशा ज़्यादा आता है, जो एक्चुअल प्रैक्टिस में आयनिक करेक्टर होता है ना वो ज़्यादा और आता है ऑब्जर्वेशन से। तो हम इस तरह से आयनिक इसकी परसेंटेज आयनिक करेक्टर उसको मालूम करते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग द परसेंटेज वर्ड, सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 100, सो इट विल बी converted. Now let's we take the example of this part, calculating the percentage ionic character in a bond, and we are discussing the example of hydrogen fluoride here. The bond length is 92 picometer, it's shown with the radius, and this is the value of 1.92 dipole moment, and that's your observed value, and ये हमारे पास है, and we are going to calculate the ionic value of HF. If HF is purely ionic, Q is equals to 1.60 exponential minus this Q value is given, the Coulomb charge value, and the dipole moment would have been 4.42. This is what calculated value आपको बता दी है. The charge separated in HF can therefore be considered to be simple. आपके पास दोनों values हैं, you have 1.92, you have 4.42. This is your fixed value. Just put them in here and then multiply it with 100. So आपके पास value आ जाएगी. इसकी कैलकुलेशन भी होती है, आपकी बुक में प्रॉपर कैलकुलेट करके दिखाया भी हुआ है. आई गेस आपकी बुक में HCl का करेक्टर है, उसको खोलें, उसको अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि H का बॉन्ड पहले तोड़ते हैं, फिर Cl का बॉन्ड पहले तोड़ते हैं, फिर HCl को मिला के उसकी कैलकुलेशन की जाती है, तो वो सॉल्व्ड है आपकी बुक में. तो ये एग्जांपल हमने डायरेक्ट वाली आपको दिखा दी है कि डायरेक्ट अगर आता है तो उसके अंदर जस्ट ये MCQs के अंदर पूछा जा सकता है. एंड इफ़ वी रीड दिस पार्ट, इफ़ HF वर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड बाय HF, then it would be 50% ionic and 50 approximately we will just representing it कि आपके पास 50% ionic character है and 50% covalent character जो है वो show हो रहा है in case of HF. On the next slide we have effect of bonding on the properties of a compound. Simple. I'm not going to read each and every word here. I'm just going to clear the concept of that part and then ठीक है मैं रीड भी कर दूँगी, लेकिन फ़िलहाल आई वॉन्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड. हाउ डू इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड. मोस्ट ऑफ द इफ़ यू सी द एग्जांपल ऑफ NaCl,
as we know it is an ionic compound. So is it soluble in water? The answer is yes, they are. And ionic compounds are directly when we let them dissolve in the pure polar solvents. For example, the example we have, how many types of solvents? We have two types of solvents, polar and नॉन पोलर. फाइन. सो नॉन पोलर जो है, पोलर फेवर करते हैं आयनिक को, एंड नॉन पोलर कोवेलेंट सॉलिड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं. सो यहाँ पर हमने यही करेक्टर डिस्कस करना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड आर डिसॉल्व इन द वाटर एंड दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक या नॉन पोलर ऑयल लें आप, ऑयल के अंदर आप डाल के रख दें सॉल्ट को. सो यू विल सी कि दे आर, गर्म नहीं करेंगे, बस ऑयल को आपने हीट अप नहीं करना. आप ठंडे तेल के अंदर एक नॉर्मल पानी के अंदर सॉल्ट डालें और उसको, और दूसरे के अंदर आप सॉल्ट डालें ऑयल के अंदर. सो आप देखेंगे कि पानी के अंदर वो जल्दी डिज़ोल्व हो रहा होता है. क्यों? क्योंकि लाइक डिज़ोल्व लाइक द कॉन्सेप्ट, दिस इज़ हाउ कॉन्सेप्ट एक्चुअली. उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि लिखा क्या हुआ है. मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द पोलर वाटर मॉलिक्यूल डिटैच द कैटाइंस एंड एनाइंस फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस बाय देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि क्रिस्टल लैटिस उस चीज़ को कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका जो NaCl है वो क्रिस्टल लैटिस होता है, वो एक लैटिस होता है. उस NaCl जो एक क्रिस्टल, वो क्रिस्टल है, ठीक है. सो कह रहे हैं कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो कैटाइंस और एनाइंस को सराउंड कर लेता है, वो बॉन्ड तोड़ता है, वो अपने आप को, उसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं तो वो उनके साथ जो है वो रिएक्शन करना शुरू कर देता है. फॉर दिस हैपन हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या है, होता क्या है? हम कोई भी कैटाइन या एनाइन की एग्जांपल लेते हैं वाटर के साथ. मैं ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहीं समझा देती हूँ. हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है ना आपका, वो सराउंड कर लेगा किसको? ये आपका फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है. मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ऑरेंज कलर रख लेते हैं. ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, इसने सराउंड करना है किस चीज़ को? आपका कोई भी कैटाइन है. फॉर एग्जांपल मैं कॉपर ले रही हूँ, कॉपर का नेगेटिव पार्ट जो है उसको हर तरफ से कौन सराउंड कर लेगा? ऑक्सीजन सराउंड कर लेगा. तो ये जो सराउंडिंग कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल किसी भी कैटाइन एनाइन को, तो ये कोई एनर्जी रिलीज़ होती है. जब ये सराउंडिंग का प्रोसीजर हो रहा होता है तो उसका कोई एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, उस एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है. सो कह रहे हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज एडिशन ऑफ वाटर शुड बी इक्वल टू द ग्रेटर दैन द लेटेस्ट एनर्जी. इसका मतलब क्या है कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा वाटर जो है वो सोल्यूबल हो, तो वाटर सोल्यूबल कर ले चीज़ को, तो जो लेटेस्ट है आपका, फॉर एग्जांपल जो भी आपका सॉल्ट है क्योंकि वो बाउंड हुआ है ना, लेटेस्ट क्रिस्टल बना हुआ है, तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे से. तो उस जो वाटर ने सराउंड करना है इसको, वाटर जो इस आयन को सराउंड करेगा, वो एनर्जी कह रहे हैं ये वाली एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए इसकी अपनी एनर्जी से. ये एनर्जी जो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो ये सोल्यूबल होगा. अगर ये एनर्जी कम होगी और ये एनर्जी ज़्यादा है, लाइक ये स्ट्रॉन्गली पैक्ड है, तो तब ये डिज़ोल्व नहीं होगा. दिस इज़ वाई सम आयनिक कंपाउंड नॉट, और अगर आप देखते हैं कुछ हमेशा नहीं होता आयनिक कंपाउंड डिज़ोल्व नहीं हो रहे, तो वो क्यों है? बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैन नॉट ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस. दस लेटेस्ट एनर्जी डोमिनेट्स ओवर द देयर हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब लेटेस्ट एनर्जी डोमिनेट कर रही है. नेक्स्ट पार्ट इज इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. में वी हैव सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड कि वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्वेंट. सो वो सॉल्वेंट्स की नेचर डिफरेंट हो जाती है. एंड आई विल गिव द एग्जाम्पल ऑफ हेयर. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ऑयल्स हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू डिजोल्व वाटर इन ऑयल, सो यू कांट. बट इफ़ यू आर मिक्सिंग टू ऑयल्स टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल है एंड मस्टर्ड ऑयल है, एंड यू आर जस्ट मिक्सिंग दैम, सो ऐसा नहीं होता कि दे डोंट गेट मिक्सड. कोई भी ऑयल है, दो ऑयल्स को मिक्स करोगे वो इजीली मिक्सड हो जाएंगे. यू कांट डिफरेंशिएट वेयर द लेयर ऑफ द फर्स्ट ऑयल इन द सेकंड ऑयल. बट व्हेन इट कम्स टू द वाटर एंड ऑयल, सो वी all I guess have experienced this thing that they सेपरेट सी लेयर्स बन रही होती हैं और ऑयल अलग ही नज़र आ रहा होता है. ठीक है. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड. कोवेलेंट कंपाउंड्स आर रीडली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. फॉर एग्जांपल ऑयल की एग्जांपल मैंने दी है. इसके अलावा पेट्रोल है. पेट्रोल के अंदर नॉर्मली आपके पास नॉन पोलर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. CCl4 है, बेंजीन है, टर्पाइंस हैं, CS2 कार्बन डाइऑक्साइड है. बेतहाशा एग्जांपल हैं, लेकिन ऑयल की एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ आपको क्योंकि यू ऑल आर फेमिलियर
विद दैट पार्ट्स, दैट्स वाई। पेट्रोल की एग्जांपल भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में आ सकती है, सच एज बेंजीन, ईथर, हेक्सेन। वेरी फ्यू ऑफ सच कंपाउंड्स आर ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर एंड समटाइम्स कुछ नॉन पोलर आपके पास चीज़ें होती हैं जो सोल्यूबल हो जाती हैं इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। द अट्रैक्टिव फोर्सेज आर ईजियर टू ओवरकम बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड दस डिसॉल्विंग प्रोसेस इज ऑल्सो readily why this so, बिकॉज यहाँ आपका फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये कहते हैं इनकी डिसॉल्विंग जो प्रोसीजर है वो कंपैरेटिवली आयनिक के थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपके ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, इनका ये बॉन्ड वीक होता है, ठीक है, इनका आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन रहा होता है ना, तो ये वीक होते हैं थोड़े, तो ये ईजिली अपना बॉन्ड तोड़ते हैं, ये रीज़न है। तो द सोल्युबिलिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इन वाटर डिपेंड ऑन देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, एक मिनट, हाइड्रोजन बॉन्ड विद दैट वाटर मॉलिक्यूल। और इसकी जगह मैं एग्जांपल पता है क्या बताऊंगी आपको, इफ़ यू नो you have a sugar, I mean sugar sucrose, you don't have, खुदा ना खासा, घरों में हमारे पास जो शुगर होती है उसकी बात हम कर रहे हैं, उसका फार्मूला होता है C11H22O11, ठीक है, C12H22O11 सुक्रोज है। दिस सुक्रोज इज़ नॉन पोलर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, बट इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। वाई? बिकॉज इसके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका स्ट्रक्चर मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं सिंपल सी बात बता रही हूँ कि ये आपने देखा होगा, शुगर इज़ डिसॉल्व इन वाटर, ऑल्दो इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल्दो इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ये होना चाहिए, उस साइड पे आना चाहिए, इट मस्ट नॉट गेट डिसॉल्व, बट इसके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसॉल्विंग इन द वाटर, ठीक है, हालांकि हैं दोनों की नेचर्स डिफरेंट, दैट्स वाई। इसके अलावा अल्कोहल की भी एग्जांपल आप लोगों ने देखी होगी कि समटाइम्स अल्कोहल को पानी में डाला जाता है तो वो भी डिसॉल्व हो जाती है, वहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ रहा होता है। इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड में सी एंड डी पार्ट्स हैं। नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के अंदर बात करेंगे। नॉन डायरेक्शनल मतलब क्या? आप लोगों ने अभी हम लोगों ने पीछे हाइब्रिडाइजेशन, वी हैव स्टडीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन दैट वी हैव डिस्कस sp3, sp2, sp hybridization and we have discussed the structures of different compound molecules हमने देखे हैं, but we have not seen any of the example of ionic compounds, so that's why we are saying them कि they are non-directional in nature, they don't have direction, they are rigid and non-directional since the bonds are not allowed to move and rotate, therefore they don't show any kind of isomerism also. Directional nature of covalent compounds means they are non-rigid and directional because their bonds are allowed to rotate in different orientation in space. Thus many covalent compounds show the phenomena of isomerism, and it is the example of ethanol and dimethyl ether. Let me write the formula: C2H5OH. It is 5. C2H5OH. If you check the formula, let me write it again: C2H5OH. They both have same molecular formula. That one is ethanol alcohol and the second one is dimethyl ether, but the one is ethanol, the different functional group, and the second one is diethyl ether, so they are directional, they have direction, they can form isomers. These organic covalent compounds. Fine. Then we have effect of bonding on the properties of compound. We have a reaction kinetics, speed reaction. Reaction kinetics मैं discuss करती हूँ जल्दी से कि who do react fast. Simple. In ionic compound exist in the form of ion in their aqueous solution, therefore they show rapid reactions. Because उनके अंदर rapid reaction show होता है. When it comes to the covalent, in contrast to covalent ionic compound, covalent molecule show slow reaction as the bonds are needed to broken first and then formation of. Because इसके केस में अगर हम NaCl की एग्जांपल और वाटर की एग्जांपल करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हुआ होता है दूसरे के अंदर, मतलब इसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया होता है, तो एक तरह से बॉन्ड जो है ना इनका टूटा हुआ होता है। बट यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम इनकी बात करेंगे तो पहले इनका हमें बॉन्ड तोड़ना है, पहले ही अपना बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ने के बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके फिर जाएंगे किसी और चीज़ के साथ और फिर रिएक्ट करेंगे, तो स्टेप्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स वाई दे आर स्लो रिएक्शन देते हैं कंपैरेटिवली आयनिक कंपाउंड्स के। होता फास्ट ही है लेकिन थोड़े स्लो होते हैं। डेंसिटी द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन anions and cations in an ionic compound is very strong. Thus the ions are held closely to one another. Ionic, and the result in decrease the volume of a crystal, hence increasing in the density. इसका कॉन्सेप्ट जो है कि सिंपल डेंसिटी का अगर मास अगर है तो उसका वो मास से रिलेट नहीं कर रहे, वॉल्यूम से रिलेट कर रहे हैं कि आपके पास इनके इन दरमियान इंट्रैक्शंस बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं,
क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि इनका वॉल्यूम कम हो जाता है। जब किसी चीज़ का वॉल्यूम कम हो जाता है तो कहते हैं कि उसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, और मतलब आपके पास इन्वर्स रिलेशन होता है ना, डेंसिटी इसका रिलेशन है, ये होता है ना, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम कम होता जाएगा तो उसकी डेंसिटी डेंसर होती जाएगी वो चीज़। तो ये उसके रिलेशनशिप को, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ डेंसिटी, ठीक है। देन वी हैव इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। वी हैव अ टाइप ऑफ क्रिस्टल्स नाउ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ crystals we have? We will study 4 types of crystal. First of all, we have a molecular crystals, then we have metallic crystals, then we have ionic crystals, and the last but not least we have a covalent crystals. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या है, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते जाऊँगी. वी आर डिस्कसिंग दैम ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, व्हाट आर दीज? दे कंटेन मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, बड़े वीक से इनकी इंट्रैक्शन होती है, बहुत जल्दी ये ब्रेक होते हैं. एग्जाम्पल्स इसकी आपके पास आ रही हैं. स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आपने देखा है बाहर निकाल के रखें, आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है. स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस का केस ये कहते हैं कि जैसे उसको रखते हैं वो डायरेक्ट कन्वर्ट होती है गैशियस फॉर्म में, ठीक है. सो सॉलिड वाटर आइस एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, इनके दरमियान जो है मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं. दैट्स वाई इनको मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स कहते हैं. होते सॉलिड्स ही हैं लेकिन वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है. देन यू हैव अ मेटालिक क्रिस्टल्स. मेटालिक क्रिस्टल्स कंटेन मेटालिक बॉन्डिंग इन दैम. व्हाट इज, हाउ डू वी एक्सप्लेन मेटालिक बॉन्डिंग? मेटालिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट सुन लीजिए कि आपके पास जो मेटल्स होती हैं ना, मेटालिक बॉन्डिंग का मतलब कि ऑब्वियसली मेटल्स होंगे, मेटल्स के दरमियान बॉन्डिंग होंगी. हाउ डू दे, मतलब सारी मेटल्स हैं तो सबके ऊपर क्या चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा, तो फिर इनके दरमियान बॉन्डिंग होती कैसे है? तो लिसन, सुनिए. आपके पास वो चीज़ें, दिस इज़ द कॉपर, और कोई भी मेटल है, होता क्या है कि दे लूज़ इलेक्ट्रॉन ईजिली. जितनी भी मेटल्स होती हैं दे डू लूज़ इलेक्ट्रॉन ईजिली. फॉर एग्जांपल ये कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ होगा. अच्छा, एक कॉपर तो नहीं है, कॉपर तो बहुत सारे हैं. इस कॉपर ने लूज़ किया, इस कॉपर ने लूज़ किया, इस कॉपर ने लूज़ किया, इस कॉपर ने, सब कॉपर्स ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर दिए. ओके, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाते हैं, ठीक है. अब ऊपर जाकर ये एक क्लाउड की फॉर्म बना लेते हैं. इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या इसको सी क्लाउड भी कहते हैं. इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन सी भी कहते हैं. कि मतलब सारी मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तो वो ऊपर एक क्लाउड की फॉर्म में आ गए हैं. अब क्या होता है कि ये जो आपकी मेटल्स हैं, दे आर कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज. जो ऊपर चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या चार्ज है? वो नेगेटिव चार्ज है. अब ऐसा तो नहीं होता कि इस कॉपर ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था इसको पता है मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ऐसा तो नहीं है. सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ये क्या करेगा, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और ये वाली जो आपकी कॉपर है, जो नीचे आपका कॉपर है, इनके दरमियान एक बॉन्डिंग सी जनरेट हो जाती है नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से, जिसकी वजह से जो बॉन्डिंग बनती है उसको मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं. ये कॉन्सेप्ट होता है मेटालिक बॉन्डिंग का. तो कहते हैं कि सच क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ एटम हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्डिंग. सही. सो इसके अंदर एग्जांपल्स आ रही हैं सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड सो ऑन. देन यू हैव आयनिक क्रिस्टल्स. आयनिक क्रिस्टल्स हैव आयनिक बॉन्डिंग इन दैम. एंड आयनिक बॉन्डिंग किस तरह से बनती है? इन दैट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस. Consist of cations and anions held together by strong electrostatic attractions of opposite charges. Opposite charges इसके अंदर आपके पास क्या है? NaCl है. NaCl की एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो Na के अंदर क्या होता है कि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. इस वजह से इनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है. इस तरह से लेटेस आपके सामने जो एग्जाम्पल्स लिखी हुई है ना, ये लेटेस की, ये इस तरह से स्ट्रक्चर आपके पास बन रहा होता है. तो दिस इज़ ionic bonding. And covalent crystals, as the name is showing itself, covalent crystals have covalent bonding in them. Covalent bonding is formed due to the mutual sharing of electron, and that is what we are studying here continuously. Consist of atom held together in a large network or chain by covalent bond. Diamonds and graphites are typical examples. So let's we discuss the examples of these covalent crystals. First of all, diamond is the hardest allotrope of carbon, and it sublimes at the differentiating point is melting point between diamond and graphite. It is 3500, and for graphite it is 3000. ये होता है. और इसके दरमियान मैं आपको ये बता दूं, पेपर के अंदर क्वेश्चन हो सकता है, डिफरेंस आ जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट.
तो वो आपने बताना है। आई थिंक आप लोग फेमिलियर हैं इस चीज़ से, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने पहले भी डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस, बट अगेन आई एम रिपीटिंग। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता रही हूँ, दैट हाइब्रिडाइजेशन इन द डायमंड इज़ sp3 एंड ये होता क्या है कि ये आपका एक कार्बन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। सपोज कीजिए ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट से मैं बना रही हूँ, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर कार्बन के कार्बन है, ये कार्बन है और ये सारा चारों साइड से कार्बन से ही कनेक्टेड है। तो और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है, ठीक है। ये कौन है, ये डायमंड है और इसका mp इज़ 3500, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू ग्रेफाइट, सो ग्रेफाइट के केस में कहते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एज आई सेड कि 3000 होता है, लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, इट इज़ 3000, ठीक है। इसका एक तो आपको मेल्टिंग पॉइंट पता ये होना चाहिए। सेकंड इज़ द डिफरेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर। डायमंड का स्ट्रक्चर sp3 होता है, इसका स्ट्रक्चर जनाब sp2 होता है, ठीक है। एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन से, और इसका ट्राइगोनल इसकी ज्योमेट्री होती है। यहाँ आपके सामने जो पिक्चर है वो हॉरिजॉन्टल है। अगर आप इसको वर्टिकल करके देखते हैं तो वर्टिकली देखेंगे, तो मैं आपको वर्टिकली भी बना के दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये यूँ बनी हुई है, ठीक है। अब मैं कोई एक साइड आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ ये गोल गोल हैं, इन सर्कल्स हैं और इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। और ऊपर एक, फिर अगर आप लेके जाना चाह रहे हैं, आई विल सजेस्ट कि आप एक काम कीजिए, अपनी स्लाइड अपने मोबाइल को थोड़ा सा वर्टिकल करके देखिए। ओके, वर्टिकल करें और अब मैं समझा रही हूँ इसका स्ट्रक्चर। सी, दैट इज़ 1 2 3, दिस इज़ हाउ ट्राइगोनल स्ट्रक्चर आर मेड। और ये इसके दरमियान 120 एंगल है। एंड दिस इज़ नॉट ओनली द वन केस, एक केस नहीं है, अगर आप बाकी भी देखेंगे तो वो बाकी भी इसी केस के ऊपर बने हुए हैं। ये आपका 1 2 3 सही है। सो ये 120 डिग्री के ऊपर अरेंज होते हैं। अगर आप यहाँ से देखते हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, जिस तरह से भी देखोगे ट्राइगोनल स्ट्रक्चर ही होगा। अच्छा, कार्बन आपका जो होता तो कितने कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, इट मस्ट बी 4, बट यहाँ पर तो आपके कार्बन 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं। सो व्हाट अबाउट द 4th इलेक्ट्रॉन विच इज़ प्रेजेंट, विच इज़ नॉर्मली pz इलेक्ट्रॉन होता है जो पाई बॉन्ड बनाने के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो उसका क्या। तो एक्चुअली दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज, अब अपनी स्क्रीन आप सही कर लीजिएगा, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट इन ग्रेफाइट। हम लोग कहते हैं ना, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड कांट। सो डायमंड के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। बट व्हेन इट कम्स टू ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का जो केस है वो डिफरेंट है थोड़ा। ग्रेफाइट जो है आपका, उसकी बात हम करेंगे तो वो यही कहेंगे कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, डीलोकलाइज फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसको, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है, इट इज़ नॉट फिक्स, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। प्लस इसका जो स्ट्रक्चर है वो कहते हैं लेयर्स एंड लेयर्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर। एज यू कैन सी ये लेयर्स हैं, 1 लेयर है, 1 मिनट, ये आपकी 1 लेयर है, ये 2nd लेयर है, ये 3rd लेयर है। तो लेयर्स होती हैं, इसकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो स्लिपरी टच होता है इसका, सही। और इसका आपको कोवेलेंट बॉन्ड बता रहे हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ बता रहे हैं, इट इज़ 0.34 नैनोमीटर। और इसका आपको वीक वैंडरवॉल फोर्सेस ये उस फ्री इलेक्ट्रॉन की बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है समरी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। हम लोगों ने ये चीज़ें जो हैं ये पढ़ी हैं कि आपके पास क्रिस्टल क्लासिफिकेशन, ये सारे एक चार्ट के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि आपके पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं। ये आपका पूरा एक न्यू चैप्टर है जो हम लोगों ने पढ़ना है, जिसके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस वगैरह हम पढ़ेंगे, वैंडरवॉल फोर्सेस पढ़ेंगे। लेकिन ये 3 चीज़ें आपको मैंने 4 चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि आपके पास पार्टिकल्स, इसके अंदर मॉलिक्यूलर के अंदर पोलर नॉन पोलर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, आयनिक के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, कोवेलेंट के अंदर एटम्स आर कनेक्टेड इन कोवेलेंट बॉन्ड नेटवर्क, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेटालिक कैटायंस इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर सॉलिड्स के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगी, डिटेल टॉपिक है। और बॉन्डिंग हम लोगों ने डिस्कस की हुई है कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, आयनिक बॉन्डिंग क्या है, और फिर प्रॉपर्टीज़ हैं। एज द बॉन्डिंग इज इंक्रीज, एज द नेचर ऑफ बॉन्ड इज चेंजिंग, सो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज चेंज्ड। फाइन, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होपफुली you have understood the concept what I wanted to teach.
if you have any kind of ambiguity, do ask, and do make a lot of practice. In the next class I'm going to conduct a exercise, solve करेंगे आप लोग, और मैं आप लोगों से पूछूंगी कि how you have solved it. Fine, so this is the home assignment for you after listening this lecture. So that's all about today. Make a lot of practice of all that, make a lot of practice of structure. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे फिर से. अल्लाह हाफ़िज़.